Good morning everyone. Welcome to Gyan Jyoti online classes. Today we discuss about light, okay, which is belonging to your class 8 science chapter number 16. Okay. Before this video we have already learned about the reflection and refraction also. Today we are going to discuss about that sunlight, white or color. Okay students. So this is a question also that what is the real color of the sunlight? Is sunlight white or it is a mixture of variety of colors? Okay student. So in many from your lower classes we have learned that the sunlight is generally, what you have also observed that the light which is coming from sun, that is sunlight, and we observe that also the normal color of the sunlight is white. Okay, but from an experiment, Sir Isaac Newton has proved that the sunlight is not a white color, it is a mixture of 7 different colors. That is your Viv, okay, VIVGIOL. Okay, so he performed an experiment to prove that the sunlight, that is normal white, the normal white sunlight is a mixture of 7 different colors. So, to prove this experiment, he take the help of an optical instrument called prism. He insert a beam of light on the prism. Okay, so this is the normal sunlight, which is white in color. Whenever this sunlight fall on the prism, then it will be split into 7 different colors. Yes, in this way, the white color light is split into 7 different colors. Okay, so these 7 different colors are arranged in such a manner. At the bottom there is V, I, B, G, Y, O. In this way, these are split into these 7 different colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. These are also called the 7 primary colors. Okay. So this property of the light, that to split into 7 different colors. Okay, so this property of light is also called the dispersion of light. Okay, so the phenomenon of splitting the white light into its constituent colors is known as dispersion of light, and the band of color obtained is known as spectrum. Okay, so this is also called the spectrum, a spectrum of light, and the whole phenomenon is called the dispersion of. In higher classes you may that at that classes you may detailedly learn why the bending of violet ray is more and the bending of red light is very less. Okay, and what are the application, all you have know about detailing when you have go to your higher classes. Okay, so now students, let's learn about another thing, that is human eye. Okay, student, now let's discuss about the important tool, that is human eye. Okay student, so we think we have created by the God. Okay, so in this construction of the eye we can able to know what is the level of engineering of our God. Okay, so जब हम eye की बात करते हैं, okay,
तो आई का कंस्ट्रक्शन आप जब आगे पढ़ोगे तो इतना हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन है। ओके, हर एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे ख्याल रखा गया है कि आई का कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा। फ्यूचर के बारे में सोचकर इसका जो कंस्ट्रक्शन बना है ना, इसमें हम गॉड की जो इंजीनियरिंग पावर है वो हम देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल का है। ठीक है, जो आप देखोगे नॉर्मल जो आई बोल दो, आई हम मान लो कि हमारे सब कुछ है, विदाउट आई वेयर नथिंग। ओके, सो ये जो आई का इम्पोर्टेंस है, ओके, तो आई का जितना इम्पोर्टेंस उसका कंस्ट्रक्शन और भी इम्पोर्टेंट है। उसका जो छोटी छोटी हर एक छोटी छोटी चीज़ का कितना ख्याल रखा गया है, यही पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। द सेंसिटिव sense organ enable us to see wonderful world and color around us. Its working is similar to the photographic camera. So, इसका कंपेरिजन किसके साथ किया गया है? फोटोग्राफिक कैमरा। ओके, जो आपका कैमरा होता है, कैमरा जो काम वगैरह करता है, आपका आई भी उस तरह का काम करता है, लेकिन कैमरा से ये बहुत गुना बेहतर से बेहतर है। ठीक है, तो देखते हैं आखिर इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह। नॉर्मल जो आपका आय होता है शायद इस तरह का काफी होता है, फिर हम इसको फ्रंटल व्यू में दूसरे कट करेंगे। ओके, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे हम, तो देखेंगे आपका आय का जो बल्जिंग पर्सन, स्टार्टिंग का जो बाहर का एक बल्जिंग पर्सन होता है, वो होता है जो बाहर के ऊपर निकला हुआ होता है, उसे कहते हैं हम कॉर्निया। ठीक है, तो आपका ये जो पोर्शन है, ये जो निकला हुआ पोर्शन है, ये आपको कहलाएगा कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा, आप देखोगे आई का ये पार्ट है, ये थोड़ा क्या होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्लू होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज। ओके, समवन इज वेरी डार्क। ओके, दिस पोर्शन इज वेरी डार्क। ओके, ये जो पोर्शन बनेगा इसको हम कहते हैं क्या? एरिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरिस, जो यहाँ पे है। इस कॉर्निया जस्ट नीचे, इसको मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का सर्कल कर दिया है, और ये जब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो शायद इस तरह का थोड़ा आएगा और बीच में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह का एक पार्ट है, ये एकदम सर्कुलर जैसा बना रहा है, बीच में कुछ नहीं रहेगा, एक छोटा सा होल होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपके आई में देखोगे जब आप वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक नजर आएगा। ब्लैक क्यों नजर आएगा? क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे आपको एकदम से ब्लैक नजर आता है। ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन, जो हम मानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एम्प्टी पोर्शन है, इस जो एम्प्टी पोर्शन है उसको कहते हैं हम प्यूपिल। ठीक है, इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है इसको कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका इरिस, और जो होल वाला पोर्शन है ये आपका प्यूपिल। समझ में आ रहा है? जो बाहर निकला हुआ चीज है, जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, वो होता है आपका कॉर्निया, और जो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन से में ये जो होता है, ये पार्ट होता है आपका इरिस। ओके, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं आपका इरिस। इरिस के अंदर छोटा सा होल होता है, जिसको नेचुरली ब्लैक कलर समझते हैं। ओके, ब्लैक छोटा सा होल जैसा होता है, ये छोटा सा होल को कहते हैं हम प्यूपिल। ठीक है, इसके बाद जो आता है, जो एकदम से इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका आई का। ठीक है, आप जिस तरह से आपको मैंने बताया कि मिरर, लेंस, जो आपका प्रिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो आपका लेंस है वो यहाँ, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो आप देख रहे हो, ये लेंस, ये आपका, तो ये किस टाइप का लेंस है? मैंने आपको दो तरीके के लेंस के बारे में बताया था, एक होता है इस तरीके का और एक होता है इस तरीके का। एक का मिडिल पोर्शन थिक रहता है और दोनों साइड और नैरो नैरो रहता है, और एक क्या होता है मिडिल पोर्शन नैरो और दोनों के एंड जो टॉप मोस्ट एंड है वो थोड़ा वाइड रहता है। यहाँ पे किस तरह का कंस्ट्रक्शन है? इस तरह का, करीबन इस तरह का दिखता है। तो ये कौन सा लेंस है भाई? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारे जो ह्यूमन के आई में होता है वो कौन से तरीके, किस तरीके के लेंस होता है? वो भी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। लेकिन हम जिस लेंस के बारे में पढ़े हैं वो किससे बना हुआ होता है? मेनली ग्लास से बना हुआ होता है, कांच से बना हुआ होता है।
लेकिन हमारे आंखों के अंदर जो है वो भी क्या कांच से बना हुआ है कि वहाँ मुंह आंखें के बल जब आँख से हमारा कोई कुछ चीज़ टकराएगा तो कांच टूट जाएगा। लेकिन ये जो बना हुआ है ये क्या है, कुछ ट्रांसपेरेंट मसल के सहारे बना हुआ है। तो आई का जो कुछ भी जितना भी साफ देख रहे हो मैक्सिमम वो सब ट्रांसपेरेंट ही है, ठीक है। जो लेंस बना हुआ है, जो एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आंखों के बीच, वो एक तरीके से बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। जब हम कॉर्निया की बात करते हैं, दिस इज थिन मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स द आई, इट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बल। द आई बल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप विद डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये जो टोटल कंस्ट्रक्शन ये हम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आई बल, ठीक है। ये जो टोटल हिस्सा है ये आपका आई बल। इसका क्या है, इसका डायमीटर कितना है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है। ये जो आई बल है इसके सामने जो बल्जिंग पोर्शन है ये आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया एकदम से ट्रांसपेरेंट है। इसका काम क्या है, अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो लाइट को क्या करेगा, आई के अंदर जाने के लिए उसको पास कर देगा, ठीक है। ये होता है फंक्शन आपका कॉर्निया का। नेक्स्ट इरिस क्या है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। द डिफरेंट कलर ऑफ द आई में many people is due to the iris. Hence in a person with blue eyes the color of the iris is blue. ये जो इसके बाद जो पोर्शन आता है ये वाला पोर्शन ये आपका क्या इरिस। इरिस का काम क्या है, इरिस का मान लीजिए डिफरेंट कलर होता है। ये मान लीजिए कुछ मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है। अगर वो मस्कुलर ऑर्गन ब्लैक कलर के होगा तो आपका आई ब्लैक नजर आएगा, वो ब्लू कलर के होगा तो आपका आई ब्लू नजर आएगी, और ये ब्राउन कलर का है तो आपका आई भी ब्राउन हो। तो आई का कलर डिटर्मिनेशन के लिए ये इरिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इरिस का काम कुछ क्या होता है, अगर हम जब प्यूपिल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका काम पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इन द iris there is small opening called pupil. This iris controls the size of the pupil and the pupil controls the amount of light entering the eye. In the dim light the size of pupil increases with the help of iris to allow more light to enter the eye, while the bright light the pupil contract to allow less light to enter into the। इसका जो फेनोमेनन जब थोड़ी कम लाइट होगा, ये इरिस एक होल है, ठीक है, इसी होल के अंदर ही आपका लाइट है। नॉर्मल अलग से डायग्राम देखो, सपोज मान लीजिए आपका आई यहाँ पर जो बल्जिंग पोर्शन रहेगा आपका कॉर्निया होगा, यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है, जहाँ पे जितना लाइट आएगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसके अंदर भेजेगा। ये हो गया आपका कॉर्निया। यहाँ पे आपका इरिस लगा हुआ है, इरिस अंदर छोटा सा होल है, तो ये क्या करेगा, लाइट के अमाउंट को रिड्यूस करके इस इरिस के सहारे अंदर छोड़ेगा। अगर ये आपका क्या है, इरिस है, ये उसका प्यूपिल है। अगर इरिस क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, इरिस कंट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा। अगर आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेच कर देगा, तो जो होल है अंदर का होल वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगा। तो हम जब डिम लाइट होता है, कुछ थोड़ी अंधेरा टाइप का होता है, ज्यादा कम रोशनी होती है, तो ये क्या होगा, इरिस ज्यादा स्ट्रेच करेगा तो प्यूपिल का जो होल है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में जो है लाइट जाएगा, ठीक है। और बहुत से आपको जब ब्राइट लाइट होगा, बहुत सारा हो जाएगा, तो आप आंखें ऑटोमेटिक क्या एकदम से बंद होने की जैसा लगेगा। तो क्या होगा, उस टाइम ये जो इरिस है ये उसको कंट्रैक्ट कर देगा और जो प्यूपिल का होल को छोटा कर देगा, तो बहुत कम मात्रा में ही इलेक्ट्रिक जो आपका लाइट है वो अंदर जा पाएगा। यही है फेनोमेनन और फंक्शन, क्योंकि इरिस और प्यूपिल, ओके, प्यूपिल बस एक होल है, इसके सहारे लाइट अंदर जाएगा, तो
होल जब बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट जाएगा, होल छोटा होगा तो कम लाइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, आई लेंस। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट इज लाई बिहाइंड द पीपल। Eye lens is a convex lens. It is made up of transparent jelly-like materials. Eye lens is held in its position by ciliary muscle. Ciliary muscle help in the changing the focal length of eye lens to see far and nearer object clearly. The lens is hard at middle and gradually becomes soft towards. ये जो देख रहे हो आप लेंस देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरह का पोर्शन, ये क्या है आपका सिलियरी मसल्स, ठीक है। यहाँ पे दो मसल्स लगे हुए हैं, ये दोनों क्या है, सिलियरी मसल्स है, ठीक है। ये जो सिलियरी मसल्स है ये क्या करेंगे, इस तरह आई में जब खींचेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जब प्रेस कंट्रैक्ट करेंगे तो थिकर हो जाएगा, ठीक है। खींच देंगे तो थिन हो जाएगा और इसको कंट्रैक्ट करेंगे तो थिक हो जाएगा। ये थिन और थिक होगा, इसी कारण क्या होगा, इसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ चेंज होगा। इसको फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक जो सपोर्ट दिया गया है, इन दोनों को सपोर्ट में क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। और जो सिलियरी मसल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे हम बाद में डिस्कशन करने के देखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आता है, रेटिना। तो यहाँ पे और यहाँ से एक लेयर जैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आ जाएगा एट द बैक साइड ऑफ द आई, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज है वो फॉर्मेशन होगा, इस पोर्शन को कहते हैं हम रेटिना, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन जहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बहुत सारे से जो ऑप्टिकल नर्व निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलकर ब्रेन को जाएगा, ये आकर कहाँ लगेगा, ब्रेन में जाएगा। ये है आपका ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल नर्व के साथ जहाँ पे रेटिना जॉइंट होता है वहाँ पे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये क्या आपका ये जो पॉइंट है, ये आपका रेटिना हो गया, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व और रेटिना जिससे हम मीट करते हैं वहाँ पे एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इसका काम क्या कुछ आगे है हम सब देखते हैं, पहले आप जान लीजिए कौन सा चीज कहाँ पे रहता है, तो ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज एक फैन है, इसे मैं इरेज करता हूँ, सपोज अगर एक फैन है, फैन का इसका एक 3 ब्लेड है, अगर स्टॉप पोजीशन पे रहेगा तो उसका ब्लेड को आप काउंट कर पाओगे। जब ये फैन मूव करने लगेगा तो क्या होगा, आप देखोगे कि इसमें बहुत सारा ब्लेड ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जब ये स्टॉप पे रहेगा तो इसे नॉर्मल फ्री है जितना काउंट कर पाएगा, जब ये फैन मूव करेगा तो इसमें कितना ब्लेड लगा हुआ है आप काउंट कर पाएंगे क्या, ये इसमें बहुत सारा ब्लेड ऐसा लगेगा, एक क्यों होता है ऐसा, ठीक है। इसको बताने के लिए क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज देखते हैं, ठीक है, उसका इमेज बनेगा आपका रेटिना पे, रेटिना से लेकर वो ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व उसको ब्रेन पे ले जाएगा और ब्रेन पे क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। तो जो इमेज बनता है ब्रेन में वो क्या होता है, 1/16 सेकेंड इतना टाइम के लिए ब्रेन पे स्टोर होकर रहता है। अगर ये जो ब्लेड को यहाँ पे देखेगा, ये 1/16 सेकेंड पर यहाँ बढ़ गया और 1/16 सेकेंड के अंदर ये क्या होगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा, इसका एक इमेज यहाँ बनेगा, इसका एक इमेज यहाँ बनेगा। तो इसी के कारण क्या होगा, ये जो 1/16 सेकेंड के लिए ब्रेन पे स्टोर होके रहता है, तुरंत कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होता है, इतना टाइम के लिए ब्रेन पे जो स्टोर होके रहता है,
इसी के कारण क्या होगा, आप बहुत सारे जो ब्लेड का फैन का ब्लेड है, बहुत सारे ब्लेड आप देख पाए। ठीक है, ये जो आंखों का एक भ्रम होता है, इसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको कहते हैं क्या, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, ये जो फेनोमेनन है इसको हम कहेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। मैंने आपको बताया था ये ब्लाइंड स्पॉट, क्या ब्लाइंड स्पॉट, ये जो चीज़ है इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो क्या होगा, ये जो इरिस जो आपका रेटिना है, रेटिना में बहुत सारे क्या होते हैं, कोन एंड रॉड होते हैं। पहले ठीक है, रेटिना के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। क्या रेटिना के अंदर क्या होता है, आपका दो चीज होती है, एक होता है आपका कोन और दूसरा होता है रॉड। ठीक है, ये जो रेटिना है, रेटिना के अंदर दो चीज होती है, एक होता है कोन और दूसरा होता है रॉड। ठीक है, बहुत सारे मात्रा में रेटिना के अंदर कोन और रॉड भरा हुआ है। ये जो कोन है, ये क्या, इसका कैपेबिलिटी क्या है, ये कलर को कैप्चर कर पाता है। ठीक है, और हम जिस तरह जो भी कलर देख रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ये सब कलर किसके वजह से आता है, ये जो कोन है, कोन रिसीव करता है ये सब सारे कलर। ठीक है, कोन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट while rod are sensitive to dim light। ओके, तो जो कोन का काम क्या होता है, जितने भी ब्राइट लाइट में होते हैं, बहुत सारे उजाले में जो फंक्शन करेगा वो कोन फंक्शन करेगा, और लाइट बहुत सारे डीम है, बहुत कम ही लाइट आ रही है, तो उस टाइम काम किसका होता है, रड का होता है। ठीक है, इसी के कारण आप जब नाइट मून लाइट में आप जब कहीं घूमने जाते हो, तो मून लाइट में आपको किसी आइडेंटिफाई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई रेड, ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम आपका कौन फंक्शन करता रहता है, रॉड। ठीक है, और रॉड का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई कलर को वो आइडेंटिफाई, वो क्या एकदम से ग्रे और नॉर्मली उसको आप एकदम से ग्रे टाइप का कलर सब कुछ लगे, आपका कोई ग्रे कलर ही है। ठीक है, आपको कोई एग्जैक्ट कलर पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम आपका कौन फंक्शन नहीं करेगा, रॉड फंक्शन करेगा। कौन का काम होता है, कौन जो है वो ब्राइट लाइट कैप्चर करता है, और रॉड जो है वो थोड़ा डिम लाइट को इजीली एसेस करता है। ठीक है, ये होता है आपका आई जो रेटिना का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोन और रॉड। ठीक है, आप जब बात करेंगे ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो रेटिना और ऑप्टिकल नर्व के कनेक्शन पॉइंट जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, उन दोनों को मीटिंग पॉइंट में क्या होता है, एक जगह होता है, जो जगह पे भी आपका कोन और रॉड नहीं होते। ठीक है, ये कोन और रॉड जब सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे तब नर्व ऑप्टिकल नर्व को देंगे तब जाएगा। यहाँ पे कोई भी रॉड या कोन नहीं होते, तो इस जब कोई इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। ये जो पोर्शन, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है तो हमें नहीं दिखता है, तो हम वहाँ पे ब्लाइंड जैसा एक्ट करेंगे। इस पॉइंट को इसीलिए क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, so student, now discuss about the working of an eye। so here we have already learned about the total construction of, हमने पढ़ा कि आय किस तरीके से कौन कौन सी चीज से बना हुआ है। अब पढ़ते हैं क्या कि आय किस तरीके से काम करता है। ठीक है, so now we are going to learn about working of an eye। so here we normally see that whenever suppose this is your sun, okay, sun radiates light energy, if and whenever suppose this is gonna be your candle, okay, if the light fall on this candle, and suppose this is a candle which is not burning, okay, then it reflects the light from here and enter our eye। okay, so whenever this light enter our eye, first a transparent material that is called your cornea, okay, the cornea allow to enter it inside the eye, then you have known that this is your iris, okay, here this is iris, if this is very huge light, this is heavy light, and iris contract the pupil, okay, it is dim light, then it is relax the pupil, so the whole become broader, okay,
Okay, so the size of pupil also depend upon the intensity of the light. Okay, after that the light enters through the pupil and fall on the lens. Okay, fall on the convex lens. Okay student, before I have already told you what is the image formation by, what type of image that will form by a convex lens. ठीक है, so convex lens में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है? कॉन्वेक्स लेंस की आप जब बात जानना चाहते हैं, ठीक है, आप ना कॉन्वेक्स लेंस की बात जानना चाहते हैं, इसको रिवर्स कर दिए किसके साथ? कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर में जिस तरह की इमेज फॉर्म होगा कॉन्वेक्स लेंस पे उसी तरह की इमेज फॉर्म होगा. तो यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो लाइट ये जो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगा और ये जो क्या होगा यहाँ पे आपका रेटिना के पास एक इमेज फॉर्म. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इंसान का जो बॉडी जा रहा है, ठीक है, अगर वो इंसान इस तरह से खड़ा है तो आपका रेटिना में जो इमेज बनेगा एकदम से छोटा सा इमेज बनेगा और क्या बनेगा? ये उसका एक उल्टा इमेज बनेगा. ठीक है, तो ये जो अगर ये इंसान इस तरह से खड़ा है तो उसका एकदम से रिवर्स उल्टा इमेज बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी मान ले कोई कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, इसका जब यहाँ पे कोई इमेज बनेगा, यहाँ पे जब इसका कोई इमेज बनेगा, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई इमेज बनेगा तो क्या होगा? वो इस तरह से एकदम छोटा होगा और इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड. ओके, सो द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेटिना में जो इमेज बनेगा एकदम से छोटा सा बनेगा, एकदम उल्टा बनेगा. तो भाई हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका उल्टा क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हम आंखों के सहारे नहीं देखते. हम बचपन से सोच रहे हैं कि हम किसके सहारे देखते हैं? आंखों के सहारे देखते हैं. पर एकदम से ये झूठ बात है कि हम आंखों के सहारे नहीं देखते, हम देखते हैं ब्रेन के सहारे. तो यहाँ पे जो इमेज बना, इस इमेज को क्या है? आपका जो कोन और रॉड है, कोन और रॉड इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसको किसके हाथ में हैंड ओवर करेंगे? ऑप्टिकल नर्व के हाथों में हैंड ओवर कर देंगे. ऑप्टिकल नर्व इसको कैरी करके ले जाएंगे ब्रेन के पास. ठीक है, ब्रेन कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेगा और फिर क्या होगा? उसका एक सही इमेज, ठीक है, जो इन्वर्टेड था उसको इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा और एकदम से छोटा साइज का था तो जिस साइज का होना चाहिए उसी साइज का एक इमेज बनाकर हमें दिखाता है. तो ये भ्रम आप दूर कर दीजिए कि आप आय के सहारे, आय में आंखों में ही दिखते हैं, नहीं, आप आंखों के सहारे देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो आय है वो बस एक कैमरा की तरह यूज होगा. ठीक है, बस एक फोटो को कैप्चर करेगा, उसको आपको नहीं दिखाएगा. ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद ही ब्रेन के सहारे उस जो चीज़ का उसको इमेज आप देख पाए. ठीक है, ये जो होता है फंक्शन ऑफ आई. तो यहाँ पे एक बात आता है, ठीक है, अगर आप लेंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हायर कंसेप्ट में बस बता दे रहा हूँ. लेंस का एक फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है जो U1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. यहाँ पर V जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है, U होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, F जो होता है क्या? फोकल लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक इंसान यहाँ पे है तो कुछ देर बाद जब ये इंसान को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये इंसान का इमेज भी यहीं रेटिना में पड़ेगा और ये इंसान का इमेज भी इस रेटिना में ही बनेगा. तो बहुत अजीब बात है. तो अगर ये सेम लेंस होगा तो आप देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो इमेज डिस्टेंस दूर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पास आएगा तो उसका इमेज डिस्टेंस भी पास आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होना है? हर इमेज को रेटिना में ही परमिशन करना है. इसी के कारण क्या होता है? ये लेंस को कभी मोटा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी थिन, कभी थिक होना पड़ता है. ठीक है, ये जो थिन और थिक होकर इसका क्या होता है? जो फोकस का लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, उसे चेंज करना जरूरी होता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कांच का बना हुआ होता है तो इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसपेरेंट मसल से बना हुआ होता है. तो ये जो सिलियरी मसल के हिसाब से ये थिन और थिक होने के कारण इसका फोकस और फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है. तो ये जो कैपेबिलिटी है, जो स्पेशल
कैपेसिटी है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आई है इसका फोकल लेंथ चेंज हो पाता है। ये जो फोकल लेंथ चेंज करने की कैपेबिलिटी है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये बस हमारे जो ऑप्टिकल लेंस, जो ह्यूमन लेंस है, इसके पास ही अगर आप कोई जो ग्लास से बना हुआ लेंस लेंगे तो उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होगा। तो ठीक है, ये कुछ स्पेशल पावर है जिसके कारण पास का ऑब्जेक्ट हो या दूर का ऑब्जेक्ट हो, सबका इमेज रेटिना पे ही बन पाता है। ठीक है, फिर एक देखते हैं क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। ये क्या कुछ है, देखो, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। अगर देखो, अगर कोई चीज़ आप एकदम से पास लाओगे तो उसका सही तरीके से देख नहीं पाओगे। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उस बुक को आप एकदम से नज़दीक ला पाए, आपका आय के नज़दीक लाएंगे तो आप ठीक से नहीं दिखेगी। अगर आप उसको बहुत दूर ले जाते हैं तब भी ठीक से नहीं दिखेगा। तो सबसे देखने का एकदम से सही, सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे है जो आप एक चीज़ को सही तरीके से देख पाते हैं, वही है अगर आप अपनी आय से 25 सेंटीमीटर के दूर पर अगर कोई चीज़ रखते हैं, उसको एकदम से सही तरीके से देख पाएंगे। इसको ही कहते हैं क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। ओके, so student, here we conclude today's classes. In this today's classes or this today's video lessons, we have discussed about the your sunlight, that is white or color. We have proved that the sunlight is a mixture of 7 primary colors, that is your Vivier. Another thing is that we have learned about the construction of human arm. Okay, in this way, this will be divided different. This is the combination of different kind of technology and different objects. Okay, so here we learn about the construction of human by eye, and also we have learned about the working function of the human eye. After that, we have also learned about the least distance of distinct vision. All these things are being clearly discussed in this video lesson. I may afford you some extra knowledge regarding it also. Okay, thank you so much. Have a good day.